Hello students, welcome to Saran's Biology. Today we are going to extend our discussion on molecular basis of inheritance. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जेनेटिक्स की ब्रांच किस तरीके से डेवलप हुई. मेंडल ने जो काम शुरू किया था 1856 में, अब बारी थी ये प्रूव करने की कि व्हाट होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कंट्रोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके लिए काफी वक्त इंतजार करना पड़ा और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. आज हम शुरुआत करेंगे और कई सारे सब टॉपिक्स में हमने चैप्टर को डिवाइड किया है. सो लेट्स बिगिन. This is chapter number 6 from syllabus of class 12th. Let us see what are the different aspects that we are going to discuss about DNA, physical and chemical structure. We'll also read about RNA. Then we'll discuss certain experiments that ensured the nature of genetic material, search for genetic material. Then we'll talk about important processes like replication, which you know, when DNA forms another copy of DNA, that is called as replication, and the information is transmitted and further formed into protein by the process of conversion of DNA into RNA and RNA to protein. So there are two discrete processes here out: transcription, formation of RNA from DNA, and translation, formation of proteins from the RNA. We'll read about genetic code. Very, very important that the DNA is made up of certain components. One of them is a nitrogenous bases, and bases make up for a code. So what is that code? We'll read in details. Regulation of gene expression. Every process needs some regulation points, some checkpoints. So we'll also see what are the checkpoints available, and then we'll talk about Human Genome Project and Rice Genome Project. The genome has been sequenced and which made great development for serving mankind. And at last, we'll read about a very interesting technique called as DNA fingerprinting. You watch every part carefully and you'll be able to understand and apply the concepts very easily. Before we start, let us find out what we are going to learn or how we are going to improve ourselves after completing this small module. Draw and explain structure of DNA, explain the chemical composition of DNA, what is complementarity, and we can also solve certain problems related to it. Difference between DNA and RNA, why the two strands runs antiparallel, and then we'll talk about packaging of DNA helix. So, a very interesting fact to start with, what we call as genomic fun facts. If all the DNA in your cells, they are laid down in a straight line, we can go to the sun and come back 70 times. 150 million kilometers and back. So, you can find out the magnitude, right? I'm very sure in class 11th you'd have read basically about nucleotide, और आपने देखा होगा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है. हम उनकी बात भी करेंगे. फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और पोलैरिटी क्या होती है, इनकी बात हम विस्तार से करेंगे. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले एक टाइमलाइन की बात करते हैं. 1856, the time when Mendel started his experiment on garden pea or Pisum sativum. He gave certain laws that we call as fundamental laws of heredity: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. Then in 1869, Friedrich Miescher, he discovered nucleic acid and called it nuclein. In 1900, Mendel's work was rediscovered. Erich von Schemark,
and his co-worker Hugo de Vries, they worked around and rediscovered Mendel's work. Karl Lorenz, de Vries and Erich von Schermark. 1902, chromosomal theory of inheritance given by Sutton and Boveri. That also paved the way, and people started questioning what is the chemical nature of this chromosome. In 1905, Bateson published Mendel's work in English, which was originally in German, and he used the word heredity. That was the cornerstone. So 1905, we have reached from 1856 to 1905, and then elaborate series of experiment took place. 1928, it was Frederick Griffith, who experimented on mice to find out what is the genetic material. He propounded transforming principle, but it was biochemically characterized. अब कौन सी चीज ट्रांसफॉर्म कर रही है, इसके विषय में तकरीबन 11 साल तक काम किया एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियॉड ने, एंड दे गेव biochemical characterization of Griffith's experiment. We'll read in details. 1949, Arvind Chargaff proposed law of complementarity. And then in 1951, X-ray diffraction image produced by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins. This was the cornerstone. So combining Chargaff's rule and X-ray diffraction image, it was proposed the double helical model by Watson Crick. And before that, Hersey and Chase in 1952 also conducted experiment to seal, to bring into the debate that DNA is the genetic material. And finally, 1953, double helical model given by Watson and Crick. So we'll read each experiment with the basic model, assumptions, procedure, and outcome. When we talk about DNA, you are very much aware it is deoxyribonucleic acid. It is a long polymer of deoxyribonucleotides, right? And on the chemical analysis of chromosome, it was discovered that it is made up of nucleic acid. There are two types of nucleic acid, DNA and RNA. And the nucleic acid is confined in the nucleus. That is not expressed in length unit. Rather, it is expressed generally in terms of base pairs, right? And the length of DNA is species specific. There is a data for all of you. The virus has got bacteriophage. 174 has got 5386 base pair. The lambda bacteriophage has got 48,502 base pairs. The bacteria E. coli has got 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. And humans have got one set of genome has got 3.3 into 10 to the power 9 base pairs, right? So we know that the basic unit of this DNA is deoxynucleotide. Now let us see the structure of DNA. So DNA is a nucleic acid which is made up of nucleotides, and they are joined into long strands chain by covalent bond. The nucleotides are joined by phosphodiester bond. So nucleic acids are long, slightly acidic macromolecules. They are made up of smaller subunit called as nucleotides, and they are linked to form long chain. So now you must be wondering, what is nucleotide made up of? अब nucleotide किन चीजों की बनी है? There are three components in the nucleotide. First, there is a sugar, and that sugar is deoxyribose sugar, which is a 5-carbon sugar. Deoxyribose sugar. There is a phosphate group and there is nitrogenous base. आप graphically देख पाएंगे यहाँ पे. This is the sugar, pentose sugar, 5-carbon sugar you can find here out. But on the second carbon, this is only H. Oxygen is not present. That's why it is called as deoxyribose sugar, right? And a phosphate group at one of the terminals, and then nitrogenous bases. We'll read about them one by one. So when we talk about the structural component, तीन चीजों की बनी हुई है. सबसे पहले तो बात कर लीजिए पेंटोज शुगर की. अब देखिए यहाँ दोनों स्ट्रक्चर है आपके लिए, राइबोज शुगर एंड डिऑक्सीराइबोज शुगर. ये दूसरे प्रकार के न्यूक्लिक एसिड जिसे आप आरएनए कहते हैं वहां प्रेजेंट होती है.
देखिए यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे एक OH ग्रुप है, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए में देखेंगे तो दिस O इज नॉट प्रेजेंट, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज, बट द नंबर ऑफ कार्बन इज 5, 1 2 3 4 एंड 5. सो देन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस. अब देखिए दो प्रकार के बेसिस आपको देखने को मिलेंगे. एक डबल रिंग स्ट्रक्चर जिन्हें आप कहेंगे प्यूरिन्स. अब आप यहां देखिए दो प्रकार के प्यूरिन दिख रहे हैं, गुआनिन एंड एडेनिन. डबल रिंग स्ट्रक्चर. बेसिकली इस रिंग के लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट. दिस इज डबल रिंग स्ट्रक्चर, एक हेक्सागन और एक पेंटागन. जबकि पैरामिडिन्स है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल. थायमिन is present in DNA, whereas uracil is present in RNA. And then phosphoric acid is 3PO4. अब ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इनके अरेंजमेंट को देख लीजिए. अगर बात करते हैं दिस पार्ट, द फ्रेमवर्क, it is made up of sugar phosphate. Sugar and phosphate makes this backbone. और बेसिस जो होंगे वो अंदर की ओर प्रोजेक्ट होंगे. और आपने देखा यहां डीएनए में देयर आर 2 चेन्स, तो वो एंटी पैरेलल होंगे. अब एंटी पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने एक एरो बनाया, इफ यू मेक अनदर एरो लाइक दिस, दे आर पैरेलल, बट इफ यू टर्न द पोलैरिटी लाइक दिस, देखिए अब ये दोनों पैरेलल तो है क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 एरो इज कांस्टेंट, बट सिंस head is here up, head is here down, it is called as antiparallel. न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. द 2 न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखकर. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट्स डीएनए, सिंगल स्ट्रक्चर दैट्स आरएनए, राइट. सिंगल हेलिक्स, इट्स नॉट डबल हेलिकल. बेसिक कॉम्पोजिशन शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, बट यहां भी थोड़े थोड़े अंतर हैं. अब वो अंतर क्या है देख लीजिए. आप देखिए इन केस ऑफ दीज आर द कॉमन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में होंगे, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो. बट इन केस ऑफ डीएनए वन मोर बेस इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड थायमिन, जो कि आरएनए के केस में क्या हो जाता है, यूरासिल. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखिए, एट द लेवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस. उसके अलावा शुगर में देख लीजिए, इन केस ऑफ डीएनए पेंटोज शुगर इज देयर, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जबकि इन केस ऑफ आरएनए इट इज राइबोज शुगर, यानी एडिशनल OH ग्रुप है. अब इस OH ग्रुप की वजह से भी जो रिएक्टिविटी ऑफ आरएनए है वो बड़ा हाई है, एंड दैट इज केमिकली ऑल्सो अनस्टेबल, नॉट एज स्टेबल एज डीएनए. हम इसकी बात भी करेंगे आगे चैप्टर में. सो नाउ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. दिस इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आइडियली मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, फॉस्फेट, बैकबोन. अब देखिए अगर मॉलिक्यूलर रूप में देखा जाए, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट ऑल्सो. तो आप देखेंगे ये न्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड आपने देखा, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, शुगर, this phosphate and nitrogenous base. अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड से थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और ये बेसेस जो अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं, दे ऑल्सो मेक बॉन्ड इन बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. और ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए के लिए. एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है थाइमिन के साथ, जबकि गुआनिन बनाती है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ. सो पहले हम बात कर रहे हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर की. तो अगर यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि you'll be able to आंसर इट. देखिए 3 पोजीशन आपको बहुत क्लियरली दिख रही है, ए, बी, राइट. सो ए इज फॉस्फेट ग्रुप, B can be anything. It can be purine as well as pyrimidine. अगर प्यूरिन की बात करें, डबल रिंग स्ट्रक्चर यानी
adenine or guanine, or it can be pyrimidine, it can be thymine and cytosine. Right? Now, आगे बढ़ते हैं. 1949 में अरविंद चारगफ ने ऑब्जर्व किया कि there is a huge amount of complementarity found in the two strands. Adenine binds with thymine. अब एक सवाल आपसे पूछ लें, एडेनिन थाइमिन यानी प्यूरिन पायरामिडिन के साथ क्यों बाइंड करता है? व्हाट्स द रीजन? रीजन इज वेरी वेरी सिंपल. दो पायरामिडिन अगर बाइंड करें आपस में तो क्या होगा? आप देखेंगे, आप इसे देख पाएंगे बहुत आसानी के साथ में. ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है. अगर दो डबल रिंग स्ट्रक्चर हो जाए तो थिकनेस विल बी मोर, और अगर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो जाए सो थिकनेस विल बी लेस. तो यह है कहानी. जबकि यू स्टडी कि दिस टू स्ट्रैंड्स आर पैरेलल, दैट मीन्स द थिकनेस इज ऑलवेज कांस्टेंट. So there is one solution. One purine pairs with one pyrimidine. अरविंद चारगफ ने डिस्कवर किया और उन्होंने बेस पेयरिंग की रूल दी. एडेनिन pairs with thymine and guanine with cytosine. But the only difference is there are 3 hydrogen bond in case of guanine cytosine and 2 hydrogen bond in case of adenine and thymine. और एक लॉ प्रपोज किया जिसके आधार पर उन्होंने कहा the proportion of A is always equal to that of T and proportion of G is always equal to that of C. यानी equal proportion of purine and pyrimidine is present inside the DNA. आप देख सकते हैं अरविंद चारगफ. Then comes a unsung scientist, Rosalind Franklin. अगर आप देखना चाहें तो ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, सीक्रेट ऑफ फोटो 51, दैट यू कैन सी. रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक से डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट किया. राइट? एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए से पता चला ये डबल स्ट्रैंडेड है. यानी अब दो क्लूज अपने पास हैं. फर्स्ट क्लू इज द बेस पेयरिंग एज गिवन बाय अरविंद चारगफ, एंड सेकंड क्लू इज द 3-dimensional स्ट्रक्चर as proposed by Morris Wilkin and Rosalind Franklin. So, इन दोनों को मिलाकर वाटसन एंड क्रिक ने बड़े आसानी से प्रेडिक्ट और प्रपोज कर दिया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. यू कैन फाइंड हियर आउट वाटसन एंड क्रिक. राइट? सो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ प्रपोजिशन ऑफ दिस डबल हेलिकल मॉडल? द बेसिस वाज द वर्क ऑफ Rosalind Franklin, Morris Wilkins and Arvind Chargaff. राइट? आप यहां एक डीएनए देख रहे हैं. बेसिकली इट्स अ बी डीएनए. डीएनए के कई टाइप्स हैं. राइट? सो खैर, अब इनके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो आप देखिए दो एंटी पैरेलल जिसकी बात हमने की थी. सो व्हाट इज दिस 5 प्राइम, व्हाट इज दिस 3 प्राइम, दैट विल सी. हम देखेंगे 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या है, किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड में आप देखेंगे जब न्यूक्लियोटाइड बनती है, देन हाउ दिस प्राइम इज डिटरमाइंड. आप देखें द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड इज अराउंड 20 एंगस्ट्रॉम, और एक जो ग्रूव है ये अराउंड 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, और इसमें 10 बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स. सो दिस वाज व्हाट वाज सजेस्टेड. यानी अगर आप डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, you can simply assume they are made up of 2 antiparallel polynucleotide chain. There is a sugar phosphate backbone that projects inside, bases projects inside. Adenine binds with thymine with 2 hydrogen bond, and guanine binds with cytosine with 3 hydrogen bond. Chains coiled in the right-handed fashion. Not every DNA is coiled right-handed. Find out which is left-handed DNA. Then the pitch is around 3.4 nanometer and distance between consecutive base pair is 0.34 nanometer. यानी एक मेजर टर्म में 10 बेस पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे. सो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स इज 2 नैनोमीटर. राइट? और जो प्लेन है, जैसे आपने कुर्सियों का रखा होगा एक के ऊपर दूसरा, तो ऐसे करते हुए बहुत बड़ा स्टॉक लगा सकते हैं. ये तभी पॉसिबल हो पाता है कि उनकी प्लेन एक जैसी हो. राइट? द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर अनदर एंड दिस कॉन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए. और यहाँ जो मैंने इस्तेमाल की यूनिट नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. कई जगह आपको एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा,
1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. So then we see another concept that was given by Crick. उन्होंने कहा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कैसे होती है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन. यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA from DNA is called as transcription, and the process of formation of protein from this RNA is called as translation. Right? इसे सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं. The information does not always flow like this. It can change some order, as in case of retrovirus. HIV is also retrovirus, जहां RNA से पहले DNA बनता है और DNA then starts its action. So that is the case of reverse transcription. डीएनए और आरएनए को जरा हम कंपेयर करके देख लेते हैं. एक बार देखिए, डीएनए में शुगर के लेवल पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इट इज इंडिकेटेड हियर, जबकि आरएनए में ये. अब जब कार्बन की नंबरिंग करते हैं, यही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. ये देखिए, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5th. तो एक टर्मिनल पे ये 5वां कार्बन फ्री होता है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं होती है, और दूसरे टर्मिनल पे ये 3रा कार्बन फ्री होता है जिसकी बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं होती है. सो अकॉर्डिंगली हम उसका डायरेक्शन नाम डाल देते हैं 5 प्राइम एंड 3 प्राइम. तो जो दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है, एक का 5 प्राइम दूसरे के 3 प्राइम से ऐड होता है. और बेस पेयर में बात कर ले तो थायमिन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए के केस में इट इज यूरासिल. बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आपको कॉमन है. This is a tabular representation. If you want to take some notes sort of thing, आप यहां से ले सकते हैं उनके रोज के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में. Now we see cell is very very small and DNA की लेंथ कितनी होती है उसकी बात कर लेते हैं. चलिए, दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बारे में आपने देखा कि द लेंथ इज 0.34 नैनोमीटर, यानी 0.34 × 10⁻⁹ मीटर. अब जो डीएनए हेलिक्स है ह्यूमन में पूरा वो है अराउंड 2 सेट मिला लीजिए तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स. और अगर 2 बेस पेयर की जो डिस्टेंस है वो भी आपको मिल गई, तो अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल फाइंड दैट द लेंथ ऑफ मैमेलियन डीएनए इज अराउंड 2.2 मीटर और डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ मीटर. तो कैसे अकोमोडेट करना पॉसिबल है? सिंपल एग्जाम्पल है, साड़ी लंबी चौड़ी काफी होती है, लेकिन उसे अच्छे से फोल्ड किया जाए, पैकेट में रखा जाए, तो एक छोटे ब्रीफकेस में आप कई सारी साड़ियां या कपड़े पैक कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पैकेजिंग. आप देखिए यहाँ पे पैकेजिंग, इट्स ऑल स्टार्ट्स, ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड से दैट रैप्स अराउंड हिस्टोन और बाद में बनाते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये न्यूक्लियोसोम फिर कॉइलिंग होती है और कॉइलिंग होते होते इट फॉर्म्स क्रोमोसोम. सो न्यूक्लिक एसिड से क्रोमोसोम तक का सफर ऐसे तय होता है. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आप देखेंगे एक लेंथ की बात कर लेते हैं. जो इकोलाई की लेंथ है डीएनए की, दैट इज अराउंड 1.36 मिलीमीटर, यानी छोटा है, कम ही है. 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं. ऐसे में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत यहां नहीं है, सिंस द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. तो कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन उनको होल्ड करके रखते हैं एंड द डीएनए इज विदाउट अ कवर. उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, राइट. एंड डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप्स. आप देखिए यहाँ पे ये लूप एंकरिंग प्रोटीन्स हैं, लूप एंकर्स हैं, ये लूप में बना के रखा है. सो यू विल फाइंड कि इस प्रकार के लूप आपको बहुत आयत में मिलेंगे एंड दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. यूकैरियोट के केस में मामला थोड़ा अलग है. सिंस द लेंथ ऑफ डीएनए इज ह्यूज 2.2 मीटर, हाउ दे शुड बी पैकेज्ड? यूकैरियोट्स, द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, एज यू नो. दे आर हेल्ड ऑन अ कोर जिसे हम कहते हैं हिस्टोन कोर, और बनाती है खास स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम. अगर आप इंटरफेस के बाद के स्टेज को देखेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है. ये देखिए कॉइलिंग है, कॉइलिंग एंड कॉइलिंग एंड कॉइलिंग एंड देन दे आर गोइंग अंडर सुपर कॉइलिंग. अब सुपर कॉइलिंग होते होते देखिए 2 नैनोमीटर से इसकी थिकनेस 700 नैनोमीटर तक पहुंच गई. 2 nanometer, it forms then 10 nanometer nucleosome which coils and forms 300 nanometer diameter of the fiber, and
Then at metaphage chromosome, it is around 700 nanometers chromosome. And this is the unit called as nucleosome, जिसकी कोर बनी हुई है खास प्रकार के प्रोटीन की, जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट. आप अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो हिस्टोन कोर जो है, आप देखें उसके चारों तरफ तकरीबन जो डीएनए लपेटी गई है, इट फॉर्म्स 2.25 टर्न, 1 3/4 टर्न, राइट. यू सी हियर आउट दिस वन, 1 3/4 टर्न, राइट. इसमें करीबन 200 बेस पेयर्स होती हैं. और ये जो हिस्टोन कोर है, इसमें H2A, H2B, H3 और H4 इन हिस्टोन्स के 2 यूनिट होते हैं, राइट. और जो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए पीस होता है, विच इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए, वहां पे मौजूद होगा एक और खास प्रकार का हिस्टोन जिसे आप कहते हैं H1 हिस्टोन. इनकी और फर्दर पैकेजिंग के लिए कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत होती है. सो दे फॉर्म सम स्ट्रक्चर. क्रोमेटिन में देखेंगे तो आपको कई जगह दिखाई देगा लूजली पैक्ड और स्टेन होने वाले, जिसे आप कहेंगे यूक्रोमेटिन, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा. और कई रीजन्स आपको डेंसली पैक्ड दिखाई देंगे और स्टेन डार्क करेंगे, उसे आप बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन. सो क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए? यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है. तो ये थी पैकेजिंग की बात. आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं. डीएनए के स्ट्रक्चर ढूंढने में जो क्रेडिट हम देते हैं वाटसन ट्रिक को, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस एंड दैट ऑफ अर्विन चारकॉफ. DNA is made up of 2 polynucleotide chain coiled in helical fashion with unique base pairing mechanism. Adenine base pairs with thymine, 2 hydrogen bond. Guanine base pairs with cytosine, 3 hydrogen bond. Each nucleotide consists of deoxyribose sugar, a phosphate, and nitrogenous base. Or there are 4 different types of bases. In fact, here 5, जिनको broadly हमने classify किया था purines और pyrimidines में, double ring, purine, single ring, pyrimidine. तो कौन सा बेस आरएनए में प्रेजेंट होगा? यूरासिल in place of thymine. Adenine and guanine are purines, where thymine and cytosine are pyrimidine. So base pairing I have already described. And chromatins are made up of nucleosomes in eukaryote and arranged in loops in case of prokaryote. There are some questions that I'll share maybe, but this is what we had for you in the initial opening topic of the molecular basis of inheritance. In the coming topic, we'll be talking about the experiments that led to the conclusion that DNA is the genetic material. Till then, happy reading, keep yourself safe, and meet you very soon. Bye-bye. Students, keep ahead of your friend by subscribing the channel and hit the bell icon to get notified if there is a new video coming your way.